Today we will learn about the nth derivative of some special functions, some general functions. Let us discuss that. The we have discussed the nth derivative of ax plus b to power m. So what it was? It was m minus 1 up to m minus n plus 1, and this is this a to power n, and this is your ax plus b to power, this is m minus n, and here this m should be greater than n. Okay, so we will apply this formula. Okay, second one, the nth derivative of e to power x. So we are going to discuss the nth derivative of e to power ax. Okay, so what it will be? So if we are going to differentiate e to power x one time, it means first order derivative अगर हमें निकालना है, if we are differentiating, this is ax, so we know simply e to power ax is e power ax, and this ax का a further आ जाएगा. फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम करेंगे, दिस इज g2 e to power ax. So what we are doing, we actually derivative of e to power ax. It means that this is first order derivative of e to power ax into a. तो a कांस्टेंट है, फर्दर हमारे पास हो जाएगा a e की पावर ax into a, and you can say this is your a square and e की पावर ax, and further a square is a constant. तो जब आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो यू कैन write it like this. This is d and second order derivative of e की power ax, and this will be what? This will be simply, इसका हम डेरिवेटिव फर्दर करेंगे, तो this is a square into a into e की power ax, and simply you can say this will be a की power 3 and e की power ax. ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर में a का 1 पार आ रही है, 1 एक्सपोनेंट आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर में 2 आ रहा है, थर्ड ऑर्डर में 3 आ रहा है. तो इन द सिमिलर वे, है ना, तो एंड सो ऑन, इसी तरीके से अगर करते जाएंगे वी कैन गेट. सो इफ यू आर प्रोसीडिंग इन दिस मैनर, तो वी कैन एबल गेट दिस फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला वी कैन एबल टू. In this manner, we obtain. So this will be your nth derivative of e to power ax, and that is equals to a to power n into e to power ax. ओके, तो अगर हम e की पावर ax का nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि अगर हमें मान लो सपोज दैट हमें d की पावर 12, मतलब 12th ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालना है e की पावर ax का, तो व्हाट इट विल बी? इट विल बी सिंपली a की पावर 12 एंड दिस इज e की पावर ax. अब हमको क्या है कि हमको बार बार फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर सारे नहीं करने पड़े, हम डायरेक्ट इस, तो जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हमें किसी फंक्शन का पता होता है तो इजीली उसको किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड द फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल अप टू एन ऑर्डर, है ना. फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस ऑर्डर तक का, है ना, तभी हमारे पास पॉसिबिलिटीज होंगी nth ऑर्डर लिखने की. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, इट मीन दैट nth order of e की power ax will be equal to a to power n, okay, and e to power ax into. आई नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नॉट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट मीन थर्ड फंक्शन. ओके, so nth derivative of a to power x. Okay, here is some positive number. Okay, so this is nth derivative of d to power n a to power x is just equal to a to power x and to the base e log a the whole power n, because we know that
the derivative of a to power x is simply equal to a to power x to the base e log a. If you are differentiating again, taking the second order derivative, dy d2y dx2 is just equal to, here y is actually a to power x. Okay, so we are just differentiating, so this is a constant, like a constant, एक power x further हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a to power x into to the base e log a, और फिर पहले से हमारे पास to the base e log a था ही, तो it will be what becomes e to power x to the base e log a whole of square. Okay, so in the similar way we can just say कि nth order derivative of this a की power x will be equal to a की power x to the base e log a की power n. तो you can just say, ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है और इसका डेरिवेशन भी आपको याद रखना है कि हमने पास, तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर जब आप निकालोगे तो यू विल गेट अ पैटर्न, है ना, एक प्रोसीड आपको पता चलेगा कि इसके बाद वाला जो डेरिवेटिव हो कैसे आएगा. In the similar way, we can write the nth order derivative. Okay. आइए फोर्थ नंबर फार्मूला की बात करते हैं. दैट इज व्हाट, this is the nth order derivative of log function to the base e log ax plus b. nth order derivative of this function. So let us see कि हमारे पास ये क्या होगा, अभी हमें नहीं पता what will be the nth order derivative of this function. So we know that the derivative of log x is 1 upon x. ये तो हमें पता है, सिंपली हम करते चले आए हैं कि what will be the derivative of log x. तो we know that the dx of log x is just equal to 1 upon x. We know that. तो similarly हम यहाँ पर भी हम इसको करेंगे. So solution we can just have. So first order derivative of this function. So since you can have first order derivative, it means first order derivative to the base e power ax plus b. So this will be what? This simply 1 upon ax plus b and constant a बाहर आ जाएगा. ठीक, this will be the nth first order derivative of this. तो this implies you can say जो first order derivative है, this is you get ax plus b just equal to a into this is your ax plus b to power minus 1. और ax plus b की पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव हम लिख चुके हैं, है ना, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने उसको लिखा था कि उसका हमारे पास क्या होता है, दिस फॉर्म. दिस इज द this is nth derivative of ax plus b की पावर minus 1 is just equals to minus 1 की पावर n factorial n and a की पावर n and ax plus b की पावर minus n minus 1. This is the nth derivative of ax plus b की पावर minus 1. तो हमने क्या करा, हमने एक बार जो है डेरिवेटिव करने, अच्छा हमको ध्यान दीजिएगा, we want nth derivative of this. So this therefore you can just say हमको क्या चाहिए, nth डेरिवेटिव ऑफ ये चाहिए टू द बेस e log ax plus b. ओके, तो यू कैन जस्ट से this is dn minus 1 and this is d और टू द बेस e log ax plus b. इट मीन्स एक बार हम डेरिवेटिव जब करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ax प्लस बी की पावर माइनस 1 बच पाएगा, है ना. तो ये जो हमारे पास, अब हमको जो रिमेनिंग डेरिवेटिव लिखने, अगर हमें nth डेरिवेटिव इसका चाहिए तो हमको n माइनस 1th डेरिवेटिव चाहिए किसका, दिस वन, दिस इज ax प्लस बी की पावर माइनस 1. ओके, इसका n माइनस 1th डेरिवेटिव, बिकॉज हमें n डेरिवेटिव चाहिए था तो हमें एक बार करना पड़ेगा उसको, क्योंकि लॉग है हमारे पास, लॉग है तो उसको 1 अपॉन एक्स का फॉर्म आएगा. तो फर्स्ट एक डेरिवेटिव हमने करा, उसके बाद रिमेनिंग जो n माइनस 1 डेरिवेटिव है वो ax प्लस बी की पावर माइनस 1 के ऊपर अप्लाई हो गया. ठीक है, तो यू कैन जस्ट हैव
in this way. This is your A, okay. This is dn minus 1, got it. It is ax plus b to power minus. अब हमको यहाँ पर फार्मूला लगाना है, ठीक। तो वी नो द nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी पावर माइनस वन। तो यहाँ पर जहां जहां n होगा हमारे फार्मूले के अंदर, वहां पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, n माइनस वन। जरा यहाँ पर लिख लेते हैं, since nth derivative of ax plus b to power minus वन is just equal to क्या था, माइनस वन की पावर n, ओके। एंड ए डी पावर फैक्टोरियल, तुम्हारे पास n था तो ये फैक्टोरियल n हो जाएगा। एंड ए डी पावर n था, और साथ में था ax प्लस बी की पावर माइनस n माइनस वन, ये था तुम्हारे पास, ठीक है। इट वॉज द nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी की पावर माइनस वन। जरा देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल एक पावर n ax प्लस बी की पावर माइनस n माइनस वन, ओके। इट वॉज द nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी की पावर माइनस वन, ये हमारे पास है। तो वी विल यूजिंग दिस फार्मूला फॉर हेयर। अब यहाँ पर हमें n माइनस वनथ डेरिवेटिव चाहिए। nth डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, ए तो है हमारे पास पहले से ही, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन की पावर n माइनस, ठीक, माइनस वन की पावर, क्योंकि हम अब n माइनस वनथ डेरिवेटिव चाहिए। फार्मूला तो n डेरिवेटिव के लिए चाहिए, लिखा हुआ है, बट हमें n माइनस वनथ डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन। तो यहाँ पर n रिप्लेस हो जाएगा इस फार्मूले के अंदर, n रिप्लेसिंग विद n माइनस वन, ओके। सो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, दिस इज माइनस वन की पावर n माइनस वन, एंड दिस विल बी फैक्टोरियल n माइनस वन, ठीक है, दैट इज ओके। a की पावर n माइनस वन इंटू ax प्लस बी टू पावर माइनस ऑफ, ध्यान देना, n माइनस वन, ये हो गया n माइनस वन। दिस इज द फॉर्मूला। सो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, दिस इज a की पावर n माइनस वन, ऐड होके a की पावर n बचेगा, तो इट विल बी माइनस वन की पावर n माइनस वन, ओके, इंटू इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, that is good. And here this is a to power n हो जाएगा, okay, and this will be what, this is your ax plus b to power minus n plus 1 minus 1, so 1 plus minus 1 cancel out एक दूसरे से, तो हमारे पास, तो this implies what, this implies the nth derivative of to the base e ax plus b is just equal to minus 1 to power n minus 1, and this is factorial n minus 1, this is factorial n minus 1 into a to power n, and this is your ax plus b to power minus n, okay. तो this is the nth derivative of this function, ओके। तो समझ में आया कैसे करना है। एक बार उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे लॉगरिथमिक वाला फार्मूला लगा के, उसके बाद ax प्लस बी की पावर माइनस वन आएगा, और ax प्लस बी की पावर माइनस वन का हम डेरिवेटिव ऑलरेडी लिख चुके हैं, है ना। तो उसका यहाँ पर हम यूज कर लेंगे और मेंशन कर देंगे कि nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी की पावर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या है, ये। तो वी विल गेट द फार्मूला फॉर द nth डेरिवेटिव ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन log ax प्लस b, that will be equal to minus 1 की पावर n minus 1 factorial n minus 1 and a की पावर n into ax plus b की पावर minus n। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, ओके। सो आइए जरा फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम करते हैं, दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन, है ना, साइन ax plus b। तो दिस विल बी व्हाट, तो nth डेरिवेटिव ऑफ sin ax plus b is just equal to a की पावर n sin ax plus b plus n pi by। So I'm just asking why, how we will get this formula, तो हम उस पे काम करेंगे। So since we know that
derivative of sine is what? First order derivative of sine ax plus b. What you got? You know that sine का derivative cos होता है, तो it will be, you get, this is your uh, cos ax plus b into a. ओके, फर्दर अगर हम डेरिवेटिव करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान दीजिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इट विल बी योर साइन ऑफ ax प्लस b. तो यू विल हैव टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, सेकंड ऑर्डर हो गया तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया, फिर सेकंड ऑर्डर निकालना है तो जो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर में है उसका डेरिवेटिव लिखना है। तो ए तो है ही हमारे पास, ओके, दिस इज ए, इज ओके, और इसका हो जाएगा माइनस का साइन ax प्लस बी, ओके, एंड फर्दर जब करेंगे तो ए हमारे पास बाहर है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। फर्दर इसका अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यू विल गेट व्हाट, एक्स प्लस बी, तो ए और ए मिलके हो जाएगा ए स्क्वायर, और फिर हम अगर साइन का करेंगे तो माइनस तो है, ये साइन का तो प्लस कॉस होता है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, और फर्दर ए हमारे पास बाहर आ जाएगा। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लिखते हैं, सो व्हाट यू गेट फ्रॉम ए एक्स प्लस बी इज जस्ट इक्वल टू ए क्यूब हो गया यहाँ पर, और फिर हमारे पास कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ठीक, ए स्क्वायर ए मिलकर ए क्यूब, और फर्दर ए, इसमें जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये, तो इस तरीके से हम सक्सेसिव डेरिवेटिव्स करते चले जाएंगे, तो हमको इस तरीके से पहले कॉस साइन इस तरीके से हमको फंक्शन मिलते जाएंगे। तो लेट अस कन्वर्ट ऑल दीज फंक्शंस व्हिच इज कॉस इन साइन, है ना, कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करते हैं, साइन के पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखने का तरीका, ये जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करा, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज ए, दैट इज ओके, एक कॉस है, साइन, यू नो दैट साइन 90 प्लस थीटा इज जस्ट इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहां पर ऐसे हम लिख सकते हैं दिस इज योर कॉस, नॉट कॉस, साइन, साइन के फॉर्म में हमें लिखना है ऑल द डेरिवेटिव्स इन साइन फॉर्म। तो इफ यू आर राइटिंग दिस इज इन साइन फॉर्म, तो ये जो हमारे पास ए एक्स प्लस बी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, यू कैन राइट इन दिस वे। ठीक, तो यू नो दैट साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा बिकॉज इट विल बी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, ओके, दैट इज ओके। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन है, साइन निगेटिव का है, निगेटिव का कब होता है, जब 180 प्लस समथिंग, है ना, 180 प्लस समथिंग, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, दिस विल बी, दिस विल बी साइन पाई, ठीक है, दिस इज पाई एंड प्लस का ए एक्स प्लस बी, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, वी नो दैट। ओके, नेक्स्ट ए क्यूब, यहाँ पर माइनस का कॉस आ रहा है, तो माइनस का कॉस का मतलब है कि दिस विल बी इन द साइन इज इन, you can just have in the fourth quadrant, है ना, तो you can just write like this will be sine 3 pi by 2 k, and plus this will be ax plus b in this way. Similarly, if you are writing this is a cube to the power 4, and this will be sine of 2 pi, okay, 2 pi plus ax plus b in this। तो इसका एक जनरल फार्मूला बनता चला, इसी तरीके से जो नेक्स्ट आएगा वो 5 पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी, इस तरीके से हमारे पास बनेगा। तो यू कैन से दिस इज पाई बाई 2, तो अगर पाई बाई 2 के फॉर्म में लिखना है तो इसमें पाई आया तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है ही, यहाँ पर क्या करें 2 की जगह 4 कर सकते हैं, 4/2। तो दिस इज इन जनरल वे, है ना, जनरल वे में अगर हम लिखना चाहेंगे तो वी कैन इजिली डू कि हमारे पास दिस इज एन पाई बाई 2, दिस इज ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2 इज देयर, है ना, तो एन बदलते जाएंगे, जिस नंबर का डेरिवेटिव है उसके अकॉर्डिंग हमको फंक्शन
मिल जाएगा, कॉस मिलेगा या साइन मिलेगा आफ्टर कन्वर्जन. ओके, सो लेट अस सी. तो यू कैन जस्ट राइटिंग हियर and so on. Proceeding, so on proceeding in this manner, we obtain, so this nth derivative of this is sine ax is equals to what? So nth derivative of sine ax plus b is just equal to a to power n, है ना, a की power n, and sine it will be equal to ax plus b, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज n pi by. तो अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव नंबर, ठीक, n will be changed and we will get the result, we get the answer. Okay, so this is the nth derivative of this sin ax plus b. Okay, तो similarly अगर sin x का simply आपको derivative चाहिए तो we can able to do. So if you are putting here, we are putting a is equals to 1 and b is 0, so it will be get sin x. So we will get what you get from here is simply this is nth derivative of, अब यहाँ पर रिमेन क्या बचेगा, sin x. Okay, and that will be what, a is 1, so 1 power n, simply you can just say this is your sine of ax, मतलब x plus n pi by 2. So this is nothing, this is simply sine x plus n pi by 2. So this is nth derivative of sin x actually. Okay, so similarly we can able to say the nth derivative of cos. ठीक है, तो cos का भी हम देख सकते हैं, nth derivative of cos 6, तो 6, तो nth derivative of cos ax plus b is just equal to a to power n cos of ax plus b plus n pi by. ठीक है, तो दिस इज nth डेरिवेटिव ऑफ cos ax plus b and that is equals to a की पावर n cos ax plus b n pi by 2. क्लियर, तो वी कैन सी सिमिलर प्रूफ. ठीक है, तो सिंस वी हैव दिस nth डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो cos ax plus b is just equal to what, you will have minus of sin ax plus b. okay, एंड दिस इज योर ए. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज योर नथिंग, दिस इज ए इंटू कॉस कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2, ये आप ऐसे लिख सकते हैं. क्या बात है भाई, जस्ट अ मिनट. ओके, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, दिस विल बी ए एंड हेयर विल बी योर कॉस. इसको अगर कॉस के फॉर्म में लिखें तो ये लिख सकते हो, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा. ओके, तो इट विल बी व्हाट, ए एक्स प्लस बी एंड प्लस दिस इज पाई बाई 2. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप लिखने जाओगे, दिस इंप्लाइज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी. तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको मिला है दैट इज योर दिस साइन ऑफ एक्स प्लस बी. तो साइन का हमारे पास क्या होता है, कॉस होता है, और एक एक्स प्लस बी में ए आ जाएगा, तो इट विल बी ए स्क्वायर
and this is your minus is cos ax plus b। तो इसमें भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि पाई cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो इट विल बी योर a स्क्वायर एंड दिस विल बी योर cos ax plus b and plus this is 2 pi by 2, 2 pi by 2 means pi। Okay, next you can just say t cube of this is your cos of ax plus b is just equal to a क्यूब है ना, एक फर्दर करेंगे तो यू विल गेट a क्यूब हियर, और cos का माइनस होता है तो इट विल बी साइन ऑफ दिस, तो दिस इज साइन ऑफ ax प्लस b। तो 3 pi by 2 प्लस थीटा इट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos जो है पॉजिटिव होता है, तो यू विल हैव लाइक दिस इज a क्यूब एंड दिस इज cos ऑफ ax plus b plus 3 pi by 2, and the same way and so on proceeding in this manner। ऐसे हम करते चलेंगे तो यू विल गेट द फॉर्मूला, so this we get the formula, the nth derivative formula। so this is your nth derivative of cos ax plus b is just equal to a to the power n, just equal to a to the power n a की पावर n cos, a की पावर n तो आएगा ही आएगा, और इट विल बी cos ax plus b plus n pi by 2। तो this formula is similar for both cos and sin। ओके, नेक्स्ट है कि अगर हम इसमें इफ यू आर पुटिंग a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास cos x का फार्मूला बन जाएगा। सो दिस इंप्लाइज जो nth डेरिवेटिव है ओनली cos x है ना, इज जस्ट इक्वल टू cos x plus n pi by 2। Got it? तो nth derivative of cos ax plus b is just equal to a की power n cos ax plus b plus n pi by 2, और nth derivative of cos x simply will get cos ax x plus n pi by। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रोडक्ट फंक्शंस का nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जैसे e की पावर ax sin bx प्लस c, और e की पावर ax cos bx प्लस c, इन दो को हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो आई होप कि कैसे हम किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव, आपको क्या करना है, आप फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का आप डेरिवेटिव लिखें, और उसके आधार पर यू कैन जस्ट चेक कि क्या हमारे पास इसका nth डेरिवेटिव होगा। बाकी ये जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं इनके तो आपको nth डेरिवेटिव याद ही होनी चाहिए। जब हमारे पास हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी कि nth डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी की पावर एन क्या होता है ना, तो वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। तो आप उसको ड्राइव करने के साथ साथ आप उसको याद भी कर लीजिएगा, है ना, रिमेम्बर रखिएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स with us। Thank you so much।